So welcome to dear students for my second lecture of the principal planes and the principal stresses. In my first lecture आपने क्या डिस्कस किया था? We discussed about the Mohr circles and the state of stress on the Mohr circle as well as the what are the principal planes, what is the significance of the principal plane, why we need to calculate the principal plane, or you can say what is the importance of the principal planes. उसके बारे में हमने पढ़ा था. Definitions क्या थी इसकी, principal planes क्या है. तो ये सारी चीज़ें we have covered in my first lecture. Now the second lecture that starts from the orientation of the principal planes. तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसका मेन चीज़ प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. हमने क्या पढ़ा था, सो दैट रिकैप करते हैं. वी विल रिमाइंड द थिंग्स. सो एक्चुअली क्या था, दिस इज माय डायग्राम नंबर 1 एंड दिस इज योर डायग्राम नंबर 2. इन द डायग्राम नंबर 1, फिगर नंबर 1, दिस इज द यू कैन से स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेन, राइट. जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन है तो दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन. एंड एज यू नो दैट दे आर द 3 स्ट्रेसेस इन दिस केस. वाई एक्सियल स्ट्रेस और प्योर हमारा वाई एक्सियल स्ट्रेसेस के केस में क्या होगा, वी हैव द 3 स्ट्रेसेस हियर, दैट इज सिग्मा एक्स, टाउ एक्स बाई एंड सिग्मा बाई. And this is your vertical plane and this is your horizontal plane, and this shows the state of stress on the horizontal as well as the vertical plane. Then we have discussed about the Mohr circle. और Mohr circle में हमने क्या डिस्कस किया था कि Mohr circle represents the points, or you can say the every point which are lying on the circumference of the Mohr circle that represents the plane, right? So there are the infinite number of the planes which are passing through the points here. One point में infinite number of the planes they are passing. So each and every plane on the Mohr circle, अगर उसका आप horizontal coordinate ड्रा करें, vertical coordinate ड्रा करें, you will get the value of the normal stress as well as the shear stress. You understand? जैसे ये आपका Mohr circle है, if you will take this point like this, तो जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, अगर इसका आप हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे तो यू विल गेट द सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस. और अगर इफ यू विल ड्रा द वर्टिकल कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेस मिलेगा. यू अंडरस्टैंड दिस. जहाँ तक तो हमने चीज़ें पढ़ी थी. उसके बाद इफ यू विल सी द कंडीशन ऑफ द Mohr सर्कल, यू विल सी हियर दैट दीज आर द 2 पॉइंट्स A and B which cuts the sigma axis. इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो you will only get the normal stress, and in this case shear stress is 0. जहां पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. बट आपका जो शेयर स्ट्रेस होगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेस क्या है आपका, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, तो शेयर स्ट्रेस आपका इस पॉइंट के ऊपर 0 होगा. यू अंडरस्टैंड दिस. द प्लेन्स विच आर हैविंग द शेयर स्ट्रेस 0, दोज प्लेन्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन. यही डेफिनेशन था इसका. प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर क्या है, ओनली वी गेट द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड वेयर एज द शेयर स्ट्रेस इज 0. सो वो जो प्लेन होंगे, देयर आर, यू कैन से इन दिस Mohr सर्कल वी विल गेट ओनली 2 पॉइंट्स, 2 प्लेन्स, that is A and V, where you will get the normal stress. Only you will get the normal stress, what the shear stress is 0. So these 2 points A and B on the Mohr circle which cuts the sigma axis. ये आपका कौन सा एक्सिस है, सिग्मा एक्सिस, which cuts the sigma axis. So ये जो प्लेन है A और B, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है A B से, और 1 और 2, these planes are called the principal planes. जहाँ तक समझ है आपकी चीज़ें सारी, all the things are clear कि principal plane क्या है. सीधा डेफिनेशन है, 1 point shear stress is 0. You understand? Shear stress is 0. और दूसरा principal plane का डेफिनेशन है कि which cuts the sigma axis. Mohr circle which cuts the
Mohr circle where the Mohr circle cuts the sigma axis, those points are called the principal planes. उस पॉइंट्स के ऊपर आपके क्या होंगे दे आर द प्रिंसिपल प्लेन. जहां तक तो चीजें हमने क्लियर पढ़ा था. उसके बाद हमें इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं. प्रिंसिपल प्लेन से हमें जो स्ट्रेसेस मिलेंगी, नॉर्मल स्ट्रेस, वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. यू विल गेट द टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस देयर, मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस. लेकिन जो बाकी पॉइंट हैं, इफ यू विल सी the remaining point on the circumference of the circle, Mohr circle, neither you will get the maximum normal stress nor you get the minimum normal stress. You understand? तो बाकी पॉइंट्स के ऊपर ना ही आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, ना ही आपको मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा. यू अंडरस्टैंड? तो जहां तक चीजें हमने पढ़ी थी. अब आ जाइए आपका ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स. प्रिंसिपल प्लेन का ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मीन्स क्या है, एंगल. तो जहां पे देखिए ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन. अब जो हम ओरिएंटेशन मींस एंगल द प्रिंसिपल प्लेन्स विच मेक्स विद द वर्टिकल प्लेन एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. राइट? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनाएंगे, यू अंडरस्टैंड, जब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन. दैट वी हैव टू सी, चेक कि ये जो इसका एंगल है, क्योंकि बिकॉज वी नो द लोकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोर सर्कल. किस केस में? हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन. Or you can say on the Mohr circle we know the location of the horizontal plane and the vertical plane. देखिए जो भी Mohr circle के ऊपर होगा ये horizontal और vertical plane से हम ड्रा करेंगे, बट प्रिंसिपल प्लेन्स की हमें लोकेशन मालूम नहीं है. और जो टॉपिक मेरा स्टार्ट हुआ वो क्या है कि हमें प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशंस को फाइंड आउट करना है. यू अंडरस्टैंड दिस? तो प्रिंसिपल प्लेन की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि वो कितना एंगल वर्टिकल प्लेन से, जो एंगल प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 और प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2, कितना एंगल वो बनाएंगे या कितने एंगल के ऊपर वो हैं, वो हमें एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. वो हमें एंगल कैलकुलेट करना है. यू अंडरस्टैंड दिस? सो अब देखिए यहाँ पे, जस्ट सी द पॉइंट हियर. So we have to calculate the angle here, that theta, or you can say theta p1. मैं ले लेता हूं theta p1 angle made by the principal plane number 1 विद वर्टिकल. जो वर्टिकल प्लेन है कितना एंगल बनाएगा, मैं उसे अज्यूम करता हूं कि थीटा p1 जो एंगल है वो आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन से वो उसका एंगल होगा. एंगल का भी मैंने आपको साइन के बारे में बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज एंगल होगा दैट वी विल टेक नेगेटिव. यू अंडरस्टैंड? और थीटा p2 आपका क्या है, एंगल मेड बाय द प्रिंसिपल प्लेन विथ वर्टिकल प्लेन. राइट? ये हमें इसका ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स नंबर 1 एंड प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2 with the vertical
प्लेन। यू अंडरस्टैंड हियर, हम जहाँ पे वर्टिकल प्लेन ही लेते हैं, अदरवाइज वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेन दोनों से हमें कितना एंगल है दिस वी हैव टू सी। यू अंडरस्टैंड। तो जहाँ पे हम वर्टिकल प्लेन का लेंगे तो एंगल मेड बाय द प्रिंसिपल प्लेन 1 विद द वर्टिकल प्लेन और थीटा P2 is the angle made by the principal plane second with the vertical plane. You understand this? So this angle we have to find out. तो एनालिटिकल मेथड हम यूज करेंगे, इसका एनालिटिकल मेथड। यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशंस क्या थी, रिमेंबर कीजिए आप, क्या पढ़ा था आपने? ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, जो प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन थी, प्रिंसिपल प्लेन्स की डेफिनेशन क्या थी? प्रिंसिपल प्लेन्स में सिर्फ आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिलेगी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। यू विल गेट द टू नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, वेयर एज जो आपका शेयर स्ट्रेस होगा, वेयर एज शेयर स्ट्रेस आपका क्या होगा? 0 होगा। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स, दैट इज you will get sigma 1 maximum stress, you will get sigma 2 minimum stress, and whereas जो आपका shear stress होगा that will be 0। तो हम इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, shear stress that is equal to 0। तो आपकी जो shear stress की इक्वेशन है वो क्या है? तो आपकी shear stress की what is the equation of the shear stress? So at you can say on principal plane, हमने क्या कंडीशन लिया? on principal planes, समझिए इसे, आपका टाउ जो है दिस इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? तो आप इक्वेशन ले लीजिए, टाउ थीटा P1, राइट? ये ओब्लिक प्लेन की इक्वेशंस मैंने शेयर स्ट्रेस की पीछे डिफाइन की थी आपने, और इसको डेरिवेटिव भी इसका निकाला था, क्या है? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन विच यू हैव ड्राइव। तो ये आपका 2 थीटा जो था, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 2 थीटा P1। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? 2 थीटा P1, और ये भी आपका आएगा 2 थीटा P1। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द shear stress ऑन द oblique plane एट एन एंगल थीटा। और जो हमारे पास कंडीशन है, टाउ आपका क्या है? 0। So 0, this is equal to minus sigma x minus sigma by 2 sin 2 theta P1 plus tau x by cos 2 theta P1, right? इसको इधर ले जाइए, therefore आप कह सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा P1, दिस इज इक्वल टू, इधर गया ये पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कास 2
थीटा P1. You understand? साइन 2 थीटा P1 और cos को इधर ले जाइए तो दैट बिकम्स, इसको इस तरीके से अगर आप लिखें, आप साइन 2 थीटा P1 डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा P1, दिस इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपको मिला. जहाँ तक आप इसको यहाँ पे आगे कर लीजिए थोड़ा सा. तो ये आपका साइन 2 थीटा P1 एंड cos 2 थीटा P1, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2 थीटा P1. दिस इज इक्वल टू दिस वन, राइट? ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. यू अंडरस्टैंड? देयरफॉर जहाँ से ही कर लीजिए, थीटा P1 दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, राइट? सो ये आपको एंगल थीटा P1 का, यू विल गेट दिस, राइट? तो ये आपको एंगल थीटा P1, ये जो आपका ये एंगल था विद वर्टिकल, है ना, प्रिंसिपल प्लेन विद वर्टिकल, प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1, क्योंकि ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 है ना, ये भी आपका ये आपका प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2 है, राइट? तो ये थीटा P1 जो आपका एंगल है प्रिंसिपल प्लेन का, और देखिए इसका जो ओरिएंटेशन है, दिस इज क्या है, ये दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, सॉरी दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेन. तो वर्टिकल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन दैट मेक्स एन एंगल थीटा P1, और इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो मैं इसको इधर ऐसे साफ करके लिख लेता हूँ. थीटा P1 दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स राइट, 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. तो ये आपका थीटा P1, एक एंगल आपने, एंगल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन विद द वर्टिकल, प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 विद द वर्टिकल, यू हैव कैलकुलेटेड द एंगल. कितना आ गया ये थीटा P1? 1/2 tan inverse 2x/3. So this is your one angle. राइट? अब थीटा P2 कितना होगा? थीटा P2, just see here, दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2. ये आपका प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 था, तो इसके और इसके बीच में एंगल थीटा P1 हमने कैलकुलेट किया. अब ये जो दो प्रिंसिपल प्लेन हैं, अगर इनका म्यूचुअली एंगल देखा जाए, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दे मेक एन एंगल कितना, 90 डिग्री है. जहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में, वो कितना होगा, जे और जे वाला
ये एंगल आपका है 90 डिग्री, राइट। जहाँ पे 90 डिग्री होगा और मोर सर्कल के ऊपर देखिए, दिस इज द मोर सर्कल, इसके ऊपर ये पॉइंट ए एंड बी, दिस मेक्स एन एंगल 180 डिग्री, डबल द एंगल ऑफ दिस, यू अंडरस्टैंड। तो थीटा P2 अपना निकालना है, तो दिस इज 90 डिग्री, जहाँ से लेके जहाँ तक 90 डिग्री है, क्योंकि विद वर्टिकल निकालना है, तो वर्टिकल निकालने ये जो एंगल है दिस इज थीटा P1 है। तो मैं थीटा P निकालने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस थीटा P1, ये आपका थीटा P2 हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो थीटा P2 एंगल है आपका जहाँ से लेके जहाँ तक ये निकालना है, राइट। थीटा P2 ये एंगल है जहाँ से लेके जहाँ तक 90 है, एंड दिस इज प्लस थीटा P1, तो थीटा P2 आपका एंगल जे हो जाएगा। सो जे आपका ओरिएंटेशन मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड द एंगल्स ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 एंड प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2 विद द वर्टिकल प्लेन, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका ओरिएंटेशन का हो गया। ओरिएंटेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द एंगल्स, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया। अब आ जाइए तो ओरिएंटेशन यू हैव डन इट। अब नेक्स्ट ऑप्शन, इसका कैप्शन डालेंगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, हमने प्रिंसिपल प्लेन्स निकाले हैं, एंड यू नो द स्ट्रेस विच वी विल गेट ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, दो स्ट्रेसेस आर कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जहाँ पे क्या है, शेयर स्ट्रेस आपका 0 है, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यू विल गेट द 2 नॉर्मल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, जहाँ पे 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस, 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस वी विल गेट, 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस, राइट। वी विल गेट द 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स। ये जो आपकी 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, यू कैन से दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, राइट। ये क्या है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, बिकॉज शेयर स्ट्रेस इज 0। शेयर स्ट्रेस इस केस में क्या है, 0 है। और अगर आप ये देखिए, दिस इज योर मोर सर्कल, दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दीज 2 पॉइंट्स आर द प्रिंसिपल प्लेन्स। और प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर यू विल गेट द 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो जो 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस हम फाइंड आउट मिलेंगी हमें, वो क्या मिलेंगी, एक तो हमें सिग्मा 1 मिलेगा, राइट, और एक हमें सिग्मा 2 मिलेगा, यू अंडरस्टैंड, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दिस इज योर ओरिजिन, यू विल सी हियर सिग्मा 1 इज हियर, सो यू कैन से सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो जहाँ पे हमें सिग्मा 1 क्या मिलेगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स सिग्मा मैक्स, you will get the sigma max here, and sigma 2, this is your the minimum normal stress, because only on the principal planes we will get the maximum normal stress and the minimum normal stress. Otherwise, if you will see the Mohr circle, and you will find that at every point on the circumference of the Mohr circle, that represents the planes. But if you will draw the sigma coordinate, horizontal coordinate and the vertical coordinates, you will get the value of the sigma and tau. But the sigma which we get here means normal stress which we get here,
नीदर इट इज मैक्सिमम नार इट इज मिनिमम। ये आपको मैक्सिमम और मैक्सिमम भी नहीं मिलेगी। अगर आप ये भी पॉइंट ले तो इसका मैं अगर ये ड्रा करूं जहां पे ये वाला, तो जहां से ये ड्रा करूं ये वाला, जहां से सिग्मा जो है जहां तक आएगा, तो सिग्मा मैक्सिमम तो इस पॉइंट के ऊपर है। तो ही इज सेइंग दैट यू विल गेट नीदर मैक्सिमम normal stress nor minimum normal stress, but in the case of the principal stresses we will get the maximum normal stress and the minimum normal stress, right? तो जहाँ पे हमें maximum normal stress और minimum normal stress मिलेगा, दो चीजें। You understand this? Now we have to find जहां तक चीजें क्लियर है, वी विल गेट द ये जो आपकी सिग्मा 1 एंड द सिग्मा 2, दीज आर द कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यू अंडरस्टैंड? अब इसका हम ग्राफिकल मेथड से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द मोर सर्कल। सो अगर ग्राफिकल मेथड वैल्यू हम इस्तेमाल करें तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ऑन द मोर सर्कल, तो टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस राइट, टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस on plane 1 and 2, right? हमें प्लेन 1 और 2 के ऊपर प्रिंसिपल प्लेन्स कैलकुलेट, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। मीन्स सिग्मा 1 वी हैव टू कैलकुलेट एंड द सेकंड वन इज सिग्मा 2 कैलकुलेट। तो मेथड कौन सा यूज करेंगे हम? ग्राफिकल मेथड। अगर पहले हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, ग्राफिकल मेथड, हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। सो ग्राफिकल मेथड दैट इज फ्रॉम द मोर सर्कल। ग्राफिकल मेथड से जब हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट करना है तो वी विल फर्स्ट कम टू द मोर सर्कल, और मोर सर्कल से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे graphical methods, right? So you can say from Mohr circle. Look here. This is your point number V. ये point आपका B जहां से, you understand here? This is your origin. Origin से लेके point 1 तक, from origin to point 1, ये क्या है आपका? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 1 है। मीन्स दैट इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मोर सर्कल, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to up to the point 1, up to the point 1 or B, जो भी आप ले ले, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द पॉइंट 1, ये आपको वैल्यू देगा सिग्मा 1 की। यू अंडरस्टैंड? तो पहले हम कैलकुलेट सिग्मा 1 ही कर लेते हैं। अब देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल। ये क्या है? मोर सर्कल का सेंटर है। दिस इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल। मैं जहाँ पे ये आपका आ गया, क्या होता है? सेंटर कोऑर्डिनेट सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 0। दिस इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल। और ये आपका क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। ये सारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस हैं जितने भी ले लिए। मैं कहता हूँ दिस इज योर रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। यू अंडरस्टैंड? सेंटर ऑफ द मोर सर्कल और रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, यू नो दैट, राइट?
तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या होता है? इसमें इधर लिख लेते हैं। तो जो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल होगा, इसका फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? दिस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। जो आपका रेडियस का फार्मूला आता है ये वाला होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 प्लस टाउ एक्स बाई होल स्क्वायर। और जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट्स, ये आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मोर सर्कल क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 डैश 0। ये चीज़ें आपको दोनों याद रखनी है। यू अंडरस्टैंड दिस? रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, दिस इज इक्वल टू दिस वन, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई स्क्वायर, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल दिस। यू अंडरस्टैंड? ये चीज़ें आपने लिख ली यहाँ पे कि आपको पता चलेगा व्हाई आई हैव रिटन हियर बिफोर हैंड। अब जो हमारा सिग्मा 1 है, नाउ कम टू द अगेन बेसिक थिंग विच वी आर कैलकुलेटिंग, दैट सिग्मा 1। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है ये? ओरिजिन से, ओरिजिन दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, फ्रॉम दिस पॉइंट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 1 ये आपका है। अब देखिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ओरिजिन O to 1 डिस्टेंस चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस? हमें क्या चाहिए? O to 1 डिस्टेंस लाइए। जहां पे देखिए सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कहां से लेंगे हम? दैट वी विल टेक फ्रॉम द सेंटर। तो आप कह सकते हैं जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज द सेंटर कोऑर्डिनेट्स जो आपके हैं, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2, राइट? तो जहां से आप कह सकते हैं द डिस्टेंस अप टू द सेंटर, अगर मैं ऐसे लिखूं, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अप टू सेंटर ऑफ मोर सर्कल। ये ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा बिकॉज आई स्पेस नहीं मेरे पास, आप नोट कर लीजिए। सेंटर किसका? मोर सर्कल का, प्लस ये हो गया द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर। और जहां तक हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा 1, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। तो अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर प्लस रेडियस ऑफ द मोर सर्कल को ऐड करता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1। यू अंडरस्टैंड? मुझे सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जहां पे आगे लिखिए रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्लियर हो गया? बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था सिग्मा 1। क्या करना था पहले? हम क्या फाइंड आउट करने हैं? सिग्मा 1। सिग्मा 1 मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द पॉइंट नंबर 1। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 को मैंने लिखा, सिग्मा 1 क्या है? अगर मैं सिग्मा 1 को लिखता हूं तो सिग्मा 1 आपका है टोटल डिस्टेंस, ये लिखा है इधर मैंने, ये लिखा है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द पॉइंट 1, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1। अब इसी डिस्टेंस को मैंने बाइफरकेट करके लिखा। अगर मैं ये लिखूं द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर, जहां से लेके जहां तक एक डिस्टेंस प्लस जहां से जहां तक दूसरा डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ द सर्कल है उसको ऐड किया, तो वी विल गेट द टोटल डिस्टेंस। हमें
ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मिल जाएगा हमें, यू अंडरस्टैंड। अगर हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा from the origin up to the point 1, that distance will give the value of the principal stress, maximum principal stress, that is sigma 1, you understand। तो जहां से हमें सिग्मा 1 की वैल्यू मिलेगी, तो अब लिखिए इसको मैथमेटिकली लिख लीजिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर क्या है, सेंटर कोऑर्डिनेट दे दिए है सिग्मा x प्लस सिग्मा बाई 2, तो ये आपका आ गया सिग्मा x। अगर मैथमेटिकली मैं लिखूं इसको, यह हो गया सिग्मा x प्लस सिग्मा बाई 2, ये हो गया प्लस रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल क्या है, दैट इज सिग्मा x माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई सिग्मा 1 की। यस, नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अगर आपने एनालिटिकल मेथड में निकालना है एंड यू आर हैविंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको दिया है वाई एक्सियल प्लेन के ऊपर, दैट इज सिग्मा x सिग्मा y एंड टाउ एक्स वाई। तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस को ये फार्मूला यूज़ करके, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ये हो गया सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 1, यू अंडरस्टैंड। अब मैं निकालूंगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ पे होगा, पॉइंट A के ऊपर, मींस पॉइंट 2 के ऊपर, दैट इज सिग्मा 2। मैक्सिमम पॉइंट 1 के ऊपर, दैट आई हैव कैलकुलेटेड, एंड द मिनिमम एट पॉइंट 2। इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। Now, second thing, we have to calculate the sigma 2, that is the minimum principal stresses, right? Sigma 2, हमें sigma 2 निकालना है, that is minimum principal stress। sigma 2 क्या है आपका, minimum principal stress, right? अब देखिए सिग्मा 2 क्या है, व्हाट इज योर सिग्मा 2। अगर मैं मोर सर्कल से, फ्रॉम मोर सर्कल से देखूं, द डिस्टेंस कहां पे, जे निकालना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अप टू द पॉइंट ए, राइट, यही होगा ना। टोटल डिस्टेंस from the origin, not center, total distance from the origin total distance up to the point A, up to the point A on more circle, right? ये जो आपका डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस, ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन है, जहाँ से लेके जहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज योर सिग्मा 2। तो ये सिग्मा 2 की हमें वैल्यू निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर of Mohr circle, right? The distance from the origin up to the center of the Mohr circle
अगर देखिए जहां से लेके जहां तक ये डिस्टेंस हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो अगर मैं ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन अप टू द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, उसमें से मैं रेडियस ऑफ द मोर सर्कल सब्ट्रैक्ट करूं ये वाला डिस्टेंस, सो देन आई विल गेट द डिस्टेंस हियर फ्रॉम ओरिजिन अप टू द पॉइंट 2। और ये जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, वो आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे हम इस तरीके से। यू अंडरस्टैंड, दैट डिस्टेंस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसलिए द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू सेंटर ऑफ द मोर सर्कल ये मैंने ले लिया, एंड माइनस करो दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। तो लिख लो आप रेडियस माइनस रेडियस ऑफ मोर सर्कल, राइट। सो दैट दिस डिस्टेंस जो हमारे डिस्टेंस मिलेगा, दैट डिस्टेंस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आप इसको मैथमेटिकली इसमें ऐड कर लीजिए। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, वो क्या होगा ये वाला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और अब क्या होगा, माइनस होगा, माइनस क्या, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। तो रेडियस आपको दिया है, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड। तो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 2। ये हमें मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इस तरीके से निकलेगी। तो ये आपका आ गया एनालिटिकल मेथड। ये फार्मूले दोनों याद कर लीजिए आप, कि अगर आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई वाई एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस उसमें कितनी होती है, 3 स्ट्रेसेस होती हैं। वी हैव गॉट द 3 स्ट्रेसेस देयर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द 3 स्ट्रेसेस, so by using the relations for sigma 1 and sigma 2, you can calculate the value of the maximum principal stress, that is sigma maximum, and this is your sigma minimum. ये आपका क्या आएगा, this is your sigma minimum. You understand? So this is the method, graphical method to calculate the principal stresses. ये ग्राफिकल मेथड था कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने का। यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एनालिटिकल मेथड भी हम देख लेते हैं कि एनालिटिकल मेथड से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए आप। नाउ वी आर यूजिंग द एनालिटिकल मेथड। So second is analytical method to calculate the principal stresses on plane 1, plane 2 means sigma 1 and sigma 2. ये हमें calculate करना है analytical. So as you know the इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस एट एन एंगल थीटा, ये आपने पढ़ा है ओब्लिक प्लेन्स में। नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन एंगल थीटा के ऊपर आपको पता है, वो क्या है, सिग्मा थीटा दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, राइट, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2
cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. So this is the equation of the normal stress at an angle theta, or you can say on the oblique plane. हमें नॉर्मल स्ट्रेस का ये इक्वेशन मालूम था. अब देखिए जो प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 है, जो प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1, वो आपका वर्टिकल से एंगल जो मैंने बताया था वो कितना है, थीटा P1. वो कितना एंगल है, थीटा P1, राइट. और थीटा P1 एंगल क्या था, 1/2 tan इनवर्स टाउ 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. यू अंडरस्टैंड. आई थिंक दिस इज द इक्वेशन जब भी मैंने पीछे फाइंड आउट किया था कि हाउ यू विल गेट द एंगल, राइट, थीटा P1. तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपकी इक्वेशन है, अब जब हमें प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 निकालना है तो मैं थीटा, ये मैंने जहाँ पे थीटा लिया था, थीटा इज़ द जनरल एंगल एट एन एंगल थीटा, किसी भी एंगल के ऊपर. बट हमें हमारे जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल से जो प्रिंसिपल प्लेन है दैट मेक्स एन एंगल थीटा P1, और वो एंगल थीटा P1 मैंने पीछे ड्राइव करके दिया था आपको, क्या है, 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. तो क्या करेंगे आपको टाउ एक्स वाई की वैल्यू दिया होगा, सिग्मा एक्स का होगा, सिग्मा वाई का होगा. तो ये वैल्यू इस रिलेशन में आप डाल दीजिए, और इस रिलेशन में डालने के बाद आपका जो एंगल आएगा दैट एंगल इज योर थीटा P1, मीन्स द एंगल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 विद द वर्टिकल. यू अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब है कि ये 2 थीटा की जगह अगर मैं 2 थीटा P1 लिख दूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, सिग्मा थीटा P1. सिग्मा थीटा P1 मीन्स it will show the principal stress sigma 1. You understand? Maximum stress, principal stress number 1, that can be written as sigma x sigma y by 2 plus sigma x sigma y by 2 cos 2 theta P1 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा P1. यू अंडरस्टैंड. थीटा P1 की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लीजिए, और थीटा P1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में यूज कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर ले. सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1, मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 1. समझ आ गया. तो इसी तरीके से आपने अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 2 निकालना है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस नंबर 2 का फार्मूला तो सेम होगा यहाँ पे, और जो जहाँ पे आपको एंगल मिलेगा, राइट, उस एंगल में आप प्लस 90 डिग्री कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है थीटा P1 की जगह अब अपने कौन सा एंगल लिखना है, थीटा P2. जब आपने सेकंड प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट करना है तो उसमें एंगल जो वर्टिकल प्लेन से वो एंगल बनाएगा वो क्या है, थीटा P2. और थीटा P2 जो एंगल है ओरिएंटेशन में अभी हमने पढ़ा थीटा P1 प्लस 90 डिग्री. यू अंडरस्टैंड. तो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ दिस थीटा यू विल राइट दिस थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, राइट. तो थीटा P1 आपने निकाला है, प्लस 90 डिग्री उसमें ऐड कीजिए. यू पुट ऑल द वैल्यूज ऑन द इक्वेशन. एंगल जो है वो सिर्फ याद रखना है कि सिग्मा 2 अपने जब मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपने निकालना है उस केस में जो एंगल होगा विद द वर्टिकल वो क्या है, आपका एंगल थीटा P2 है. और थीटा P2 जो एंगल है ओरिएंटेशन में अभी मैंने इसको आपको ड्राइव करके बताया, डिस्कस किया हमने, दैट एंगल थीटा P1 प्लस 90 डिग्री. यू अंडरस्टैंड. तो जहां से आपको थीटा P2 एंगल मिलेगा एंड यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द थीटा P2 हियर, तो ये इसका जो इक्वेशन होगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 कास, ये आ जाएगा 2 थीटा
P2, क्या आएगा इसमें 2 थीटा P2। एंगल हम क्या लेंगे इसमें, थीटा P2 एंगल लेंगे, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा P2। तो ये वैल्यू आप रखें, सब्स्टिट्यूट करें तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू मिल जाएगी बाई यूजिंग द जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन थी, नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन थी इन केस ऑफ द ऑब्लिक प्लेन, वो आपके पास इक्वेशंस हैं। ओनली यू हैव टू चेंज द एंगल देयर। आपने क्या करना है, एंगल उसमें थीटा की जगह अपने एंगल थीटा P1 सब्स्टिट्यूट करना है, और थीटा P1 आपने एंगल अभी ओरिएंटेशन में निकाला, वो क्या है 1/2 tan इनवर्स इंटू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो जहां से वैल्यूज को पुट करके आपको एंगल थीटा P1 मिलेगा। तो थीटा P1 एंगल जो भी मिलेगा वो साइन और कास में इसको आप लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए, और आपका सिग्मा 1 मैक्सिमम स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको मिलेगा। और सिग्मा 2 निकालने के लिए, क्योंकि दीज टू आर एट 90 डिग्री, प्रिंसिपल नंबर P1 एंड P2 ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री है, मोर सर्कल में दिस इज 180 डिग्री। तो जो एंगल आपका वर्टिकल प्लेन से प्रिंसिपल प्लेन का नंबर 1 का एंगल आएगा, उसमें 90 डिग्री को ऐड कीजिए, तो वो एंगल आपका होगा जो आपका सेकंड प्लेन है विद द वर्टिकल, वो एंगल आपका बनाएगा थीटा P2 एंड दिस इज इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। तो ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1 एंड द सिग्मा 2, राइट। तो जहां तक चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट नोट था यहाँ पे, वो थोड़ा सा देखिए, जैसे हमने थ्री डिमेंशनल बॉडी लिया था हमने, इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। राइट, तो दिस इज द थ्री डिमेंशनल बॉडी, और इसमें थ्री डिमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस ये आपका आ गया एक्स, एंड जी आप वाई ले लीजिए, एक्स वाई जेड थ्री एक्सिस, राइट। सो इन दिस केस वी गॉट द टोटल 9 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस इन थ्री डिमेंशनल बॉडी। तो जो वाई एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस जब हमें बनाना है, इन केस ऑफ द y actual stress, how we will get the y actual state of stress? तो y actual state of stress में क्या करते हैं, ये आपका जो x y प्लेन है, ये आपका अगर x है, this is your x plane है ना, this is your x plane and this is your y plane, means ये जो आपका x y प्लेन है, ये सारे का सारा जो x y प्लेन है, फॉर वाई एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, वाई एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये फिगर थी आपकी ट्राई एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की। तो वाई एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में क्या है, जो आपका प्लेन एक्स वाई है, इसको हम क्या लेते हैं 0, यू अंडरस्टैंड। तो प्लेन एक्स वाई हम 0 लेंगे, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितनी भी स्ट्रेसेस होंगी, मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, ये भी आपकी क्या होंगी 0 होंगी, यू अंडरस्टैंड। बिकॉज जब प्लेन हम एक्स वाई प्लेन को 0 कर रहे हैं, तो ऑल द स्ट्रेसेस आर 0। तो इसका मतलब है कि ऑल द स्ट्रेसेस आर 0, तो इसका मतलब सिग्मा आपका 0 है और आपका टाउ भी 0 है इसमें, राइट। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग ओनली द 2 स्टेट ऑफ द स्ट्रेस, 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। भी हम 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में
डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, because we are considering the two plane and we are just making this plane xy plane is 0, but actually we are having the three principal stresses sigma 1, sigma 2 and sigma 3. लेकिन y actual state of stress में आप लिख सकते हैं in case of y axial state of stress, sigma 3 is taken as 0. You understand? तो y एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में हम क्या है कि सिग्मा x जो है सिग्मा 3 है वो क्या होगा, 0 होगा. इसलिए हम y एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ओनली हम दो स्ट्रेसेस के बारे में ही पढ़ते हैं, सिग्मा 1 एंड द सिग्मा 2, क्योंकि जो आपका सिग्मा 3 होगा इस केस में जो y एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा 3 होगा वो 0 होगा. क्यों? बिकॉज फॉर y एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करेंगे कि ये प्लेन जहाँ पे 0 है, ये प्लेन नहीं है. तो इसका मतलब है जितनी भी स्ट्रेसेस इसके ऊपर होंगी, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, चाहे वो आपकी शेयर स्ट्रेसेस हैं, वो क्या होंगी, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, ये सारी स्ट्रेसेस इसमें 0 होंगी. सिग्मा भी 0 होगा, टाउ भी आपका 0 होगा. तो सिग्मा जब 0 होगा तो नेचुरली जो सिग्मा 3 होगा इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस नंबर 3, वो भी तो 0 हो जाएगी. यू अंडरस्टैंड? तो अदरवाइज यू कैन से ऐसे, इफ वी विल कंसिडर द 3 एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये अगर आप बॉडी पूरी की पूरी हम क्यूबिक बॉडी को 3 डिमेंशनल स्टेट ऑफ बॉडी को कंसिडर करेंगे, सो इन दैट केस वी विल गेट द 3 स्ट्रेसेस सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3. बट इन केस ऑफ y एक्शियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस sigma 3, that is taken as 0. You understand? So here only we are discussing about the two stresses sigma 1 and sigma 2. तो ये आपको चीज़ क्लियर है? सो जहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. इसको भी बता देते हैं. यू अंडरस्टैंड? important concept of principal stresses. So देखिए, so principal stresses are equal to the eigenvalue of the stress tensor matrix. याद रखिए, ये एक principal stresses are equal to the stress tensor matrix equal to the eigenvalue, equal to the, जहाँ पे लिख लीजिए, to the eigen value of the stress tensor matrix, right? जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, दे आर इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स.
अब स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स क्या है? दैट इज सिग्मा एक्स टाउ एक्स बाई टाउ वाई एक्स एंड सिग्मा वाई। जी आपका हो गया स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। इफ यू हैव टू राइट द stress tensor matrix, that is written like this: sigma x sigma y, ये diagonal है, sorry ये tau x y, this is your tau x y and tau y x, this is your stress tensor matrix। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है आपका stress tensor matrix, you understand? So the definition says the principal stress are equal to the eigenvalue of the stress center matrix, means J principal stress किसके बराबर है? सिग्मा x। आइगन वैल्यू कैसे लिखते हैं? माइनस लैम्डा टाउ एक्स बाई टाउ वाई एक्स एंड सिग्मा बाई माइनस लैम्डा, राइट? सो दिस इज योर आइगन वैल्यू। अगर आपने स्ट्रेस टेंसर फैक्टर मैट्रिक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू, सो दैट इज रिटन लाइक दिस। एंड इफ वी विल इक्वेट दिस आइगन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, अगर मैं इक्वेट करता हूँ इसको इक्वल टू 0, सो वी विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा क्या क्या है? दो वैल्यूज मिलेंगी, मीन्स लैम्डा 1 एंड lambda 2, right? We will get the two values of lambda 1 and lambda 2, which we can say sigma 1 and sigma 2, you understand? lambda 1 and lambda 2। अब इसका प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू की क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इधर लिख लीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, यू अंडरस्टैंड? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, आर यू कैन से इसको आप इस तरीके से, लैम्डा 1 मैंने कहा है कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सिग्मा 1, लैम्डा 1 की जगह मैं अगर ऐसे लिखूं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। एक तो ये आपको इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी, ये हो गया सम ऑफ द कौन सा पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ द आइगन्स वैल्यू, सम ऑफ आइगन्स वैल्यू, दिस इज यू कैन से सम ऑफ आइगन्स वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो लैम्डा 1 की जगह मैं अगर लिखता हूँ जहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सेकंड प्रॉपर्टी है इसका प्रोडक्ट ऑफ द आइगन्स वैल्यू, इसको बिटा दीजिए, प्रोडक्ट्स ऑफ द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी थी, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दैट इज you can say lambda 1 into lambda 2, this is equal to the determinant
of the matrix. Determinant of the matrix. Right? फर्स्ट था सम ऑफ द आइगन वैल्यू और सेकंड था प्रोडक्ट ऑफ आइगन्स वैल्यू. दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये आप कह सकते हैं सिग्मा 1, लैम्डा 1 की जगह सिग्मा 1 लिख लो, सिग्मा 2. दिस इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेट आपने निकालना है तो कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये वाला, इनको प्रोडक्ट करो, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई एक्स, राइट, माइनस टाउ एक्स वाई एक्स. तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ एक्स वाई स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? So this is the second equation. ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे ये इक्वेशन आपको यूज़ होगी, राइट. सो ये आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो आपका था कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये दो इक्वेशंस आपको मिली, एक ये वाली और दूसरी मिली थी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, वो आपकी सेकंड इक्वेशन. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ आइगन्स वैल्यू. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ आइगन्स वैल्यू. तो ये दो वैल्यूज, दो इक्वेशंस आप याद रखिएगा. Sometimes we use these equations when we go for to solve some numericals, तो जहाँ पे ये equations use होंगी. You understand? तो ये आपका आ गया कंसेप्ट. अब uses ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, चलो हेडिंग लिख लेते हैं. तो uses क्या था कि हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट करने का, व्हाट आर द uses ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को हमारा यूज़ था कि इफ़ वी हैव टू, कोई भी अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है वो करना है. यू अंडरस्टैंड? तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जब आप करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यू विल गेट द टू स्ट्रेसेस, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इन केस ऑफ द व्हेन वी आर टेकिंग द प्रिंसिपल प्लेन्स. तो वी विल गेट द टू स्ट्रेसेस, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमें दो मिलेंगी, sigma 1 and sigma 2. You understand? So we can calculate the sigma maximum and the sigma minimum directly. हम sigma maximum और sigma minimum जो है जहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो आपका पॉइंट 1 मैंने लिया था मोर सर्कल का. यू अंडरस्टैंड? तो फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट आपका एक स्ट्रेस होगा ऑन द सिग्मा एक्सिस, राइट. ऑन द सिग्मा एक्सिस देयर इज पॉइंट 1 where the Mohr circle cuts and there is another point 2 जहाँ पे भी मोहर सर्कल आपका कट करेगा. दो पॉइंट्स के ऊपर सिग्मा एक्सिस के ऊपर मोहर सर्कल कट करता है. द पॉइंट विच इज फ्रॉम द सेंटर टू फार अवे ऑन द सिग्मा एक्सिस, दैट इज टेकन एज सिग्मा मैक्सिमम, एंड द पॉइंट विच इज क्लोज टू द फ्रॉम द सेंटर, तो वो आपका होगा सिग्मा मिनिमम. So this is the uses. You can say that we will get the maximum principal stress and the minimum principal stress. Otherwise, in other cases, अगर आप मोर सर्कल को ड्रा करते हैं तो वहाँ पे आपको जो आपको स्ट्रेसेस मिलेंगी, you will get the two stresses, that is the normal stress and the shear stress. और जो नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा, यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हियर और द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस देयर. आपको मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस वहाँ पे नहीं मिलेगा. मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपको कहाँ पे मिलेगा? जो आपके प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे, और प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा. तो ये आपका यूज़ है प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का
क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है किसी स्ट्रक्चर एनालिसिस में कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, कि उसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करनी है, तो बाय प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आपके यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट आ गया आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। So maximum shear stress, let us discuss the maximum shear stress here. You know that in the Mohr circle, at every point on the Mohr circle, or you can say that at every plane on the Mohr circle, we will get the one normal stress, we will get the normal stress and the shear stress. You understand? This we have drawn the Mohr circle. I will say usually we draw this circle. We say this is 1, 2 Mohr circle, right? This is 1, 2 Mohr circle. वो इसमें if I will say that where is the tau maximum? Tau maximum कहाँ पे होगा? तो tau maximum होगा, this is your center and this is the maximum point from the center on the vertical side, 0.5 and 0.6. So tau maximum, you can say maximum, tau maximum कहाँ पे होगा? Maximum at 0.5 and 6, and you can say both they are at 180 degree on the Mohr circle, and if I will take on the vertical and horizontal plane, they are 90 degree to each other. You understand? So maximum it is at 0.5 and 6, right? तो tau maximum कहाँ पे होगा? 5 and 6. तो ये क्या है? What is this? This is the radius of the Mohr circle, right? So tau maximum, this is radius of Mohr circle, right? तो tau maximum क्या होगा? जो Mohr circle होगा उसका जो रेडियस है, that will give you the value of the tau maximum, right? Usually we draw this Mohr circle 1, 2, just type of Mohr circle. But actually if we will see that how many Mohr circle we are looking here, हम कितने Mohr circle हम ड्रा कर सकते हैं? देखिए ये Mohr circle था when I have considered these two planes, 1 and 2 plane. If I will consider this plane 1 and 3, तो Mohr circle आपका इस तरीके से हो जाएगा। Right? So this is आप कह सकते हैं this is your like this, right? तो ये आपका Mohr सर्कल हो गया 1, 3 का एक Mohr सर्कल। ये इसका जो रेडियस होगा 1, 2 का, इसे मैं लिखता हूँ रो tau 1, 2 ये रेडियस, राइट? इस Mohr सर्कल का जो रेडियस होगा ये वाला, ये क्या है आपका? tau 1, 2 दिस रेडियस, राइट? tau 1, 2, क्योंकि दैट इज विद इन द Mohr सर्कल ये बना tau 1, 2। जो इसका होगा, एक अगर मैं इसकी बात करूं इसका, तो ये आपका जे वाला इस तरीके से आएगा ये, राइट? तो ये आपका जो रेडियस है इसका रेडियस ये होगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा है? ये 1 पॉइंट है, राइट? ये होगा आपका tau 3, 1 एंड देयर इज वन मोर सर्कल यू विल फाइंड हियर, जहाँ पे एक और Mohr सर्कल है। ये 2 और 3 के बीच में भी आपका Mohr सर्कल है, यू अंडरस्टैंड? तो अगर 2 और 3 के बीच में भी Mohr सर्कल ड्रा करेंगे तो इस तरीके से एक Mohr सर्कल, वन मोर Mohr सर्कल विल
जस्ट लाइक दिस, राइट, दैट इज बिटवीन 2, 3। ये किसके बीच में आएगा? 2, 3 के बीच में। और इसका जो रेडियस है, जो इसका रेडियस, ये आपका क्या है? रेडियस। तो ये आपका आ जाएगा टाउ 2, ये आपका थी राउट 2, 3, राइट। तो ये शेयर स्ट्रेस है, हम क्या कहते हैं कि शेयर स्ट्रेस, दिस इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, यू अंडरस्टैंड। तो ये जो आपकी शेयर स्ट्रेस होगी, जो यूजली जो हम ड्रा करते हैं, टाउ 1, 2 मैक्सिमम, यू अंडरस्टैंड, टाउ 1, 2 मैक्सिमम। सो दिस शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इन प्लेन, क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम इन प्लेन shear stress, maximum in plane shear stress. Usually we draw this circle, that is ये वाला 1, 2 वाला ही है। तो इसमें अगर टाउ 1, 2, राइट, 1, 2 वाला, तो ये आपका है टाउ 1, 2, दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम इन प्लेन shear stress, राइट। और मैक्सिमम इन प्लेन shear stress क्या है? टाउ 1, 2 क्या है? दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ मोर सर्कल 1, 2, राइट। अब रेडियस ऑफ मोर सर्कल, अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के केस में की बात करूं, तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल अगर हमें निकालना है, देखिए रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या होगा? जहां से लेके जहां तक कितना है? सिग्मा 1 है, यू अंडरस्टैंड। तो जहां से लेके जहां तक कितना है? सिग्मा 2 है, यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैं लिखता हूं यहां पे, इन केस, अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के केस में रेडियस निकालना है मोर सर्कल का, तो अभी पीछे पढ़ा हमने, इन केस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के केस में अगर हमें निकालना है, तो क्या होगा मुझे बताइए? फ्रॉम हेयर टू हेयर हमारा जो है वो क्या है? दैट इज सिग्मा 1। दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अप टू पॉइंट 1, सिग्मा 1। दूसरा पॉइंट है ये वाला, फ्रॉम ओरिजिन टू दिस, दैट इज सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 से मैं सिग्मा 2 माइनस करूंगा, तो आई विल गेट द डायामीटर। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दिस इज द डाया ऑफ मोर, दिस इज द डाया ऑफ द मोर सर्कल। तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या आएगा? देयरफॉर रेडियस ऑफ अ मोर सर्कल इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, रेडियस ऑफ मोर सर्कल, this is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2, right? This is the radius of Mohr circle in terms of the principal stresses. तो मैं लिख सकता हूं आपका tau 1, 2, this is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2. You understand? Tau 1, 2, this is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2, and this is your maximum in plane shear stress. This is your maximum in plane shear stress in terms of sigma 1 and sigma 2, right? अब जब हम देखिए, we know actually जहां पे there are the 3 more circles. Actually we know that we are having the 3 more circle, right? तो 3 more circle में ये आपका आ गया tau 1, 2, ये तो मैंने लिख दिया आपका, this is sigma 1 minus sigma 2 by 2, right? इसी तरीके से tau 3, 1, tau 1, 2 और 1, 3, tau 1, 2 और tau 1, 3 लिख लो, tau 3, 1,
2 आर टाउ 1 3 1 लिखो, जो भी लिखो। तो टाउ 3 1 अगर आपने लिखना है 3 1, दिस इज 3 1, टाउ 3 1, दिस इज ये किसके बराबर होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, सिग्मा आर टाउ 3 1, दिस इज सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 आर, दिस इज sigma 1 minus sigma 3/2, or you can write on like this, sigma 3 minus sigma 1/2, right? और इसी तरीके से tau 2 3, right? tau 2 3, this is equal to sigma 2 minus sigma 3/2, sigma 2 minus sigma 3/2. So you will get that these three values of this, and these are the in plane shear stress, in plane maximum in plane shear stress. You understand? Maximum in plane shear stress. तो अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द shear stress, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द shear stress क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं फाइंड करनी है, absolute maximum of shear stress, absolute maximum of shear stress. वो क्या होगा? That is the maximum of, that is maximum of मैक्सिमम shear stress जो हमने फाइंड आउट किया था, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, राइट? कोई फर्क नहीं है, ये जो है, ये जो साइन है, इसमें मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव ही हम लेंगे. सो वी आर शोइंग दिस बार्स हियर. अगर माइनस वैल्यू होगी तो दैट विल ऑटोमेटिकली कम इन पॉजिटिव. एंड तीसरा है आपका सिग्मा 1, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, राइट? सिग्मा 2 माइनस 3/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2. सो मैक्सिमम जो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट इज द मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ shear stress, दैट इज टाउ मैक्स, राइट? ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ shear stress. लेकिन अगर आप इफ यू विल सी द मोर सर्कल, तो आपको मोर सर्कल पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 जहाँ पे है एंड सिग्मा 2 कहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर है. तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, देखिए सिग्मा 1 जहाँ पे और सिग्मा 3 0 हो जाएगा, सिग्मा 2 जहाँ पे सिग्मा 3 जहाँ होगा, तो जो एब्सोल्यूट आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम shear stress. यू अंडरस्टैंड? और अगर इसमें इन प्लेन shear stress मेंशन किया है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो फिर आपने इस तरीके से निकालना है. मैक्सिमम इन तीनों में से जो वैल्यू होगी वो लिखना है. तो इन प्लेन मैक्सिमम shear stress, इन प्लेन मैक्सिमम shear stress वो लेना है आपने सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2. इफ देयर इज नथिंग मेंशनड हियर, तो आपके जो टो मैक्स हो गई, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो टाउ मैक्स को लेना है अपने टाउ 1 2,
and this is equal to radius of Mohr. This is equal to radius of Mohr circle 1, 2. You understand? This is the radius of Mohr circle 1, 2. That is, this is equal to sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy का whole square. You understand? तो ये आपकी आ गई इन प्लेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, बिकॉज यूजली वी टेक दिस जो मोर सर्कल है 1, 2 लेते हैं. इफ देर इज नथिंग मेंशन हियर, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मैक्स हम लेंगे टाउ 1, 2 इन प्लेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. दिस इज इक्वल टू दिस. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द शेयर स्ट्रेस, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द, बिकॉज हियर आई हैव taken the 3 Mohr circles here. Usually we draw only one Mohr circle, that is 1 and 2. और अगर आप देखिए जहाँ पे 3 प्रिंसिपल प्लेन है, एक Mohr सर्कल आपका हो गया जो कि हम ड्रा करते हैं, दैट इज 1 and 2. दूसरा Mohr सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं 1 और 3 से लेके, दैट इज सिग्मा 1 and सिग्मा 3. और थर्ड Mohr सर्कल भी आपको मिलेगा जहाँ पे 0.2 और 0.3 से, राइट. और अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द शेयर स्ट्रेस निकालना है तो दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2. फिर आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, या समटाइम्स दे हैव रिटन एज सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2, एंड देन इट इज सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2. यू अंडरस्टैंड? तो मैक्सिमम वैल्यू जो इनमें होगी तीनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी दैट गिव्स द एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ शेयर स्ट्रेस. और इन प्लेन मैक्सिमम ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होगा? टाउ मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन, राइट. तो आज तक आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर यहाँ पे. अब उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स निकालेंगे. उसमें देखेंगे कि उसका एक लेक्चर देंगे या 2 लेक्चर देंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, कंसेप्ट बहुत हैं अंडरस्टैंड करने वाले. और वो आप कंसेप्ट तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप उनको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, उनको हम कैलकुलेट करें. यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ तक जो इसका पोर्शन था लेक्चर 2 में, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स हियर. यू अंडरस्टैंड? ओरिएंटेशन जहाँ पे हमने पढ़ा कि ओरिएंटेशन क्या है. ओरिएंटेशन के बाद ओरिएंटेशन क्या है मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड द एंगल्स ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 and 2 विद द वर्टिकल प्लेन. एक तो हमें उसका एंगल फाइंड आउट करना था, दिस इज इंपॉर्टेंट. देन वी हैव कैलकुलेटेड दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बाय द ग्राफिकल मेथड एज वेल एज द एनालिटिकल मेथड. यू अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स. जो आपका मैट्रिक्स का था उसके आइगन वैल्यूज के बारे में आपको दिया था मैंने. यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज वेरी प्रिंसिपल स्ट्रेस का था. स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स का जो आइगन्स वैल्यू उसके हमने उसमें भी हमने 2 इक्वेशंस, हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की आइगन वैल्यूज की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको लेके हमें 2 इक्वेशंस मिली थी. आप वो देखिएगा, उन इक्वेशंस का भी हम देखते हैं कहाँ पे इस्तेमाल होता है. तो जहाँ तक आपका क्लियर हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स हियर. बट नेक्स्ट लेक्चर्स जो है, बी रेडी फॉर दैट, एंड एवरीबॉडी शुड जस्ट गिव ए गुड रिस्पॉन्स देयर. उसमें हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, देखेंगे अगर एक लेक्चर्स में आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं तो सफिशिएंट है, अदरवाइज I have to go for another lecture. You understand? So thank you very much for this lecture.